دشمن مصطفیٰ خیریت ہی نہیں مل نہیں پائے گی تم کو راحت کہیں تم پٹو گے بہت قبر میں دیکھنا تم پٹو گے بہت قبر میں دیکھنا اپنی ذلت تو تم حشر میں دیکھنا اپنی ذلت تو تم حشر میں دیکھنا بس غلام ان کے مسرور ہیں یہ وہابی تو لنگور ہیں۔ ہلو ہلو السلام علیکم جی کون صاحب؟ السلام علیکم جی ہم بولیے بھائی جان۔ ہاں میں احسان بول رہا ہوں جی، احسان انصاری، احسان انصاری کہاں سے؟ راجستھان سے، اجمیر، راجستھان اجمیر سے جی۔ اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ کس مسلک سے بولے تھا؟ دیوبندی دیوبندی؟ جی۔ اچھا اچھا جی بولیے۔ ہم یہی مطلب کل رات یوٹیوب گھاٹتے گھاٹتے دیکھے آپ کا ویڈیو آیا تھا، سمجھے؟ اچھا اچھا تو وہی اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا ہم کو۔ اچھا، کیا پوچھنا ہے؟ یہ مطلب وہ جو دیوبندی کو جو آپ لکھ کے رکھتے ہیں یوٹیوب پہ، جو مطلب اس کا جو ٹائٹل دیتے ہیں ویڈیو کا، یہ دیوبندر کا، یہ دیوبندر کا، اور وہ کیا کہتے ہیں وہابیوں کا، تو یہ کیوں کرتا ہے آپ ایسا؟ آپ دیوبندیوں سے محبت کرتے ہیں بھائی جان؟ میں محبت سب سے کرتا ہوں جی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث۔ میں آپ کو تھوڑا دیر بتا دوں، یہ جو سنیے ایک سیکنڈ بھائی، میں بول رہا ہوں یہ جو ابھی جو بڑے بڑے جو مولانا ہے ابھی علماء دین جو ہے، جیسے کہ مان لیا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ تو آپ کی جماعت سے الگ ہے؟ ہاں وہ اہل حدیث ہے جی، لیکن میں اس کا بھی بیان سنتا ہوں، اس کا بھی تقریر سنتا ہوں میں۔ یعنی دالم ڈولو آپ جی آپ ڈالم ڈولو دالم ڈول بولے تو یعنی آپ جو ہے سب کو مانتے ہو؟ میں دیوبندی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں دیوبندی کو مانو نا، دیوبندی کو تو مانتا ہوں بھائی، آپ اہل حدیث کو بھی مانتے ہیں اور اہل حدیث اہل حدیث کو مانتا نہیں ہوں۔ سنو بھائی میرا بات سنیے تو میری بات سنیے۔ جی اہل جی حدیث جو ہے وہ دیوبندیوں کو مشرک بتاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے بدری مشرک ہے ایسے مشرک ہیں، اور تمہارے دیوبندی ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں، کن لوگوں کو؟ اہل حدیث کو؟ اہل حدیث کو اچھا ٹھیک ہے، معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو میرے حساب سے تو معلوم نہیں، ہم کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا بات سن لیجیے۔ یہ جو سنیے ایک سیکنڈ، علم کا کمی ہو سکتا ہے جی، بالکل علم انسان چاہے جتنا بھی سیکھ لے بھائی، علم کا کمی ہر انسان کے پاس رہتا ہے، انسان چاہے جتنا بھی علم سیکھ لے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی، جیسے کہ یہ کیا نام بتایا تھا کہ ہاں ڈاکٹر طارق جمیل ہو گیا، سوری ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا طارق جمیل، سید امین القادری، اور پاکستان کے اور بھی مولانا ہے، وہ بریلی سے ہے، بریلوی ہے وہ، مطلب کیا نام اس کا، ثاقب رضا، مولانا ثاقب رضا، اور اجمل رضا، یہ قاری ہے، اور امین القادری کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو اپنے بہار سے، میں بھی بہار سے تعلق رکھتا ہوں، بٹ میں یہاں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں سب کا بیان سنتا ہوں، بیانات، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں سب علماء دین ہے، اور فرقہ واریت جو ہے، یہ اہل حدیث جو ہے، یہ ابھی سب سے دنیا کے سب سے ایک نمبر میں آتا ہے وہ مولانا کے اندر، ٹھیک ہے، سن رہے نا آپ؟ ہلو، ہوں آپ کی بات۔ ہاں، تو وہ جو ہمارے اندر جو اختلافات ہے، جیسے کہ آپ لوگ جو بریلوی ہے اور ہم دیوبندی ہے، اور جو اہل حدیث ہے جسے وہابی کہا جاتا ہے، تو وہ سب میرا حساب سے ہے کہ اپنے اپنے جگہ پہ سب ٹھیک ہے۔ ایسے تو آپ جو یہ جی کیسے ٹھیک ہے؟ ذرا اس کی دلیل پیش کر دیں گے، کیسے ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میرا حساب سے اسی لیے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک بار اس کا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، سید امین القادری کو جانتے ہیں نا؟ ہاں ہاں، تو اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے یا آپ سے کم ہے؟ آپ یہ بتائیے، امیر القادری صاحب نے دیوبندیوں کو مسلمان مانا ہے؟ میں جو پوچھتا ہوں وہ بات تو بولو بھائی صاحب، اس کا جواب دیجیے۔ کیا بولو، ایک بار پھر سے بولو۔ دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں، تھانوی، ننوتوی، امیٹھی، گنگوہی، چار اکابر کون کون ہے بتاؤ بھائی، نام بتاؤ جناب۔ مولوی اشرف تھانوی، قاسم ننوتوی، رشید جی قاسم ننوتوی، جی خالد احمد امیٹھی، یہ جو اکابر ہیں، 4 اکابر اربع جس کو بولا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، گنگوہی، قاسم ننوتوی، تھانوی، امیٹھی، ہاں جی، ان کو امیر القادری صاحب مسلمان مانتے ہیں؟ مسلمان نہیں مانتے ہیں؟
अच्छा, अमीनुल कादरी साहब का बयान है एक ठो, हाँ, वो जो हम लोग देवबंदी जमात में जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। मुझे क्या पता तुम जाते हो नहीं जाते हो। मैं गया हूँ भाई, मैं खुद गया हूँ। मैं इंशाल्लाह 40 दिन का जमात चिल्ले लगाया हूँ मैं, 40 दिन का, ठीक है। अच्छा अच्छा, शादी वादी तो- होगी आपकी? जी बिल्कुल नहीं, मैं कुमारा हूँ। कुमारा हूँ जी, कुमारा हूँ मैं, सिंगल। मैं कुमारा। हाँ, कुम्हार मत बोल देना यार, कुम्हार। नहीं कुमार नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कुमारा बोल रहा हूँ, कुमारा। चलिए। हाँ, तो उसका मैं बयान सुन रहे थे हम एक बार, ठीक है, सैयद अमीनुल कादरी जी का। अच्छा, तो वो बता रहे थे अपने बयान में कि अगर ये देवबंदी जो ये जमात में जो जाते हैं, अगर ये लोगों को दीन का दावत देते हैं, अगर कलमा वगैरह सिखाते हैं, तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहते हैं इसको कि मतलब ये तो जितना ही इसका बड़ाई किया जाए, मतलब जितना ही इसको बड़ाई किया जाए वो कम है मेरे हिसाब से, ठीक है। और लेकिन ये वहाँ उसका अंदर क्या करता है कि ये कुछ मतलब बता रहा था, जैसे जो आज 4 काबिर का नाम बता, उसमें से किसी एक काबिर का नाम लेके बता रहा था कि वो ये लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और ऐसा वैसा कुछ बता रहा था। तो जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरा बात सुन लो भाई, मेरा बात सुन लो। तो मैं जो जमात में गया हूँ 40 दिन का, ठीक है, हाँ, तो मैं जितना दिन 40 दिन में जो जमात में रहा हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई वहाँ अलग से कुछ तालीम नहीं दिया गया है कि ये वो है, वो ये है, ये गलत है, ये वो है। मुझे तो सिर्फ दीन के बारे में सिखाया गया है। और वो क्या कहते हैं, लिखे लग रहे हो मुझे वैसे तो। नहीं जी बिल्कुल नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं काम कर, हाँ थोड़ा बहुत हूँ। जैसे कि मैं वो मतलब कुरान शरीफ जो देख के पढ़ लेता हूँ, वो भी बगैर तलफ्फुज के साथ, और थोड़ी बहुत हदीस पढ़ लेते हो? जी, हिंदी थोड़ा बहुत, मतलब हदीस हिंदी में पढ़ लेते थोड़ा बहुत। उर्दू में मतलब जब घर पे पढ़ते थे मस्जिद में, तो मैं पढ़ लेता था, बट अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, अभी भूल गया हूँ। इंग्लिश पढ़ लेते हो? इंग्लिश थोड़ा बहुत जी। अच्छा, ये वर्ड जो है, ये जो तुमने वर्ड बोला, जी बट कहाँ बोला? इंग्लिश का वर्ड है ये? मैंने बट तो मैं बोला ही नहीं, मैं बट नहीं बोला भाई, सुनने में मिस्टेक हो गया होगा। बस बोला है तो आप? अच्छा चलो, निकल गया होगा शायद, सॉरी। ये सॉरी भी इंग्लिश का लफ्ज है? अच्छा सुन, मतलब वो गलती निकल जाता भाई थोड़ा, चलो अच्छा बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ भाईजान, आप अपने हाँ जी। मोहब्बत करते हैं? किससे? अपने वालिद से, अपने बाप से? जी बिल्कुल। आप जिंदा हैं? जी। अच्छा, माँ बाप दोनों जिंदा हैं? जी दोनों जिंदा है, माँ बाप है, भाई बहन सब है। अच्छा, और अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो मौलाना से भी मोहब्बत करते हैं ना? हाँ, मैं जितने भी उलमा दीन है सबसे मोहब्बत की बात छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं भाई? सिर्फ देवबंदियों को लो। देखो भाई, मेरा बात सुन लो। अरे यार खामोश रहो ना, जब मैंने तुम्हारी बात को सुना, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अच्छा चलो ठीक है भाई, बोलो। हाँ मैं देवबंदी वाला, अच्छा ठीक है, मैं मोहब्बत करता हूँ, आगे बोलो भाई। हाँ, करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ जी। यही दलील बता रही है कि गुस्से में आपने मुझे कॉल किया और पूछने की कोशिश की कि नूर हसन, तुम ये क्या करते हो, देवबंदियों को उल्टा सीधा क्यों लिखते हो, जी क्यों बोलते हो, है ना? जी भाई जी। मैं अब आपके सामने कह रहा हूँ, देवबंदियों के जो ये 4 अकाबिर है ना जी, ये दीन इस्लाम से खारिज हैं। हाँ, अल्लाह रसूल की शान में तौहीन करके ये काफिर हो चुके हैं, ठीक है, दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इनके कुफ्र को जानते हुए जो इन्हें काफिर ना माने, इनके कुफ्र को जानते हुए जो काफिर ना माने, वो भी इन्हीं की तरह काफिर है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझसे ये पूछो कि इनके कुफ्र क्या? मैं सीधी बात बता रहा हूँ, घुमाने फिरानी बात नहीं। अच्छा ठीक है, बोलो। जिस तरह का सामने वाला बंदा होता है, मैं उसी तरह बात करता हूँ, सीधी। ओके ठीक है भाई। अगर सामने वाला चतुर चालाक होता है तो फिर मैं उसको अपने अंदाज में उल्टा पलटा के मारता हूँ। अच्छा ठीक है, आप सीधे मानो ना, कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं अपने वालिद से भी मोहब्बत करता हूँ और अपने उलमाए देवबंद से भी मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। आपके वालिद साहब को मैं बेवजह आपके सामने बदतमीज बोलूँ, गाली बकूं, उल्टा सीधा बोलूँ, उनकी तौहीन करूँ, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ना? जी नहीं। जब आप अपने वालिद के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो क्या उस नबी के लिए बर्दाश्त कर पाएंगे जिस नबी का कहना ये हो
کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک کوئی مجھ سے محبت نہ کرے. جی کامل ایمان والا کامل مومن نہیں ہو سکتا اچھا ٹھیک ہے. جب تک اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حضور سے محبت نہ کی جائے, نہ کی اپنے جائے. بیوی بچوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کی جائے, ٹھیک ہے اپنی ٹھیک ہے. جان سے بھی زیادہ جب تک حضور سے محبت نہ کی جائے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جی جی میں تمہاری اور میری بات نہیں کر رہا ہوں, ہاں میں ٹھیک ہے. پورا سارا مومن. میں ٹھیک ہے تمہارے میرے ماں باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں رسول پاک کی بات کر رہا ہوں, اللہ کے جی میں سمجھ رہا ہوں بھائی, آگے بولو, میں سمجھ رہا ہوں. تو جس نبی کا یہ حکم ہو, یہ فرمان ہو, یہ کہنا ہو کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے. اچھا مومن کی بات ہو رہی ہے. ہاں ہاں مومن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بولو, میں سمجھ پھر رہا ہوں. حضور کی شان میں توہین کرنے والا کیا مومن ہو سکتا ہے؟ حضور کے سامنے توہین کرنے والا تو میرے حساب سے مومن تو نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہوگا پھر؟ وہ جیسا بات بولے گا, جیسا جملہ کہے گا وہی ہوگا. پھر وہی ہوگا تو کیا ہوگا؟ میں نے توہین کی بات کہی ہے, تو توہین کرنے والا جو انبیاء کی شان میں توہین کرتا ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے. کافر ہے نا. ہاں جیسے مان لیجیے آپ نے میری آڈیو پہ کوئی دیوبندیوں کے خلاف سخت بات دیکھی ہوگی, جی تو آپ کو تھوڑا سا سخت لگا, برا لگا, جی ٹھیک ہے. جی آپ نے مجھے کال کیا. جی اب میں اگر تھانوی جی کو اس طرح کہوں کہ تھانوی جی کا علم جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کی طرح ہے, یا آپ کا علم جانوروں کی طرح ہے, یا آپ کے والد کے علم کو کہہ دوں کہ آپ کے والد کا علم تو پاگلوں کی طرح ہے, دیوانوں کی طرح ہے آپ کے باپ, ہے نا, اس طرح کوئی غلط الفاظ استعمال کرو تو یہ محبت ہے کہ عداوت ہے؟ یہ تو محبت تو بالکل نہیں ہے. نفرت والے جملے ہیں کہ محبت والے جملے ہیں؟ نفرت والے جملے ہی ہے بھائی, یہ محبت والے جملے کون کہے گا؟ اگر یہی جملے کوئی حضور کی شان میں استعمال کرے, کوئی حضور کے لیے بولے, جی اس سے محبت کرنے والا بولے گا کہ حضور سے عداوت رکھنے والا بولے گا؟ محبت رکھنے والا کیسے بول سکتے جب جملہ ایسا کہا جائے تو؟ عداوت رکھنے والا ہی بولے گا نا. جی جی بالکل. تو جو عداوت رکھنے والا بولے گا, تو جب ولی سے جو بغض رکھے, عداوت رکھے, اس سے اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے, اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اچھا ولی کی بات کر رہا ہوں, نبی کی نہیں. ہاں 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 جو اللہ کے ولی سے بغض رکھے, عداوت رکھے, الرجی رکھے, دشمنی رکھے, اچھا ٹھیک ہے. اسے جلے, اچھا تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اعلان کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اچھا ہاں, تو جو اللہ کے محبوب سے بغاوت کرے, تو اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کرے, اس کے لیے تو صاف صاف ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں اگر کوئی توہین کر دے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اچھا نبی کی شان میں توہین کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا, کافر ہو جاتا ہے. اچھا ہاں, اب میں کفر بتاؤں ان کے ایک ایک کر کے. ہاں بالکل بتا بھی دو بھائی. دیکھیے, تھانوی جی نے میرے اور آپ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی. اچھا کیا ہمارے نبی کا علم غیب ایسا ہی ہے جیسے جانوروں کا علم غیب؟ اچھا ٹھیک, میرا بات ایک سیکنڈ پہلے آپ میری بات سنتے رہیے, میں کفر میں آپ کی کا بات سنوں گا بھائی. یہ سن, میرا بات سن تو نہیں, بالکل نہیں سنوں جو گا. آپ بول رہے ہیں آپ دل بھر کے بعد میں کہنا, آپ دل بھر کے بعد میں کہنا, ٹھیک ہے بھائی, پہلے اب میری بات سن لو. اچھا بولو. کیا میرے اور آپ کے نبی کا علم ایسا ہی ہے جیسے جانوروں کا علم؟ جی بالکل نہیں, بالکل نہیں. جانوروں کو علم غیب ہے؟ جانوروں کو علم غیب کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ تو اچھا, جانور. انسانوں کو علم غیب ہے؟ جی بالکل نہیں. بالکل نہیں. جو اللہ آتا ہے اسی کو علم غیب ہے. اچھا اچھا جس کو اللہ ایسا تقویٰ, ایسا نور جس کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ اس کو علم غیب دے دیتے ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نبی کا علم غیب تمہارے میرے علم غیب کی طرح ہے؟ جی بالکل نہیں یار, نبی تو نبی ہے, ہم اور آپ اس کے جیسا کیسے ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہمیں اور آپ کو علم غیب ہے؟ بالکل نہیں. نہیں ہے نا. جی بالکل نہیں. ہم تو مگر تھانوی جی کہتے ہیں زید و عمر بکر, ہاں زید و عمر سبھی یعنی بچہ, مجنون یعنی جمی حیوانات, اچھا بہائم, ان سب کے جیسا علم ہے. جو حضور کو علم غیب حاصل ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں, کوئی خاصیت نہیں, کوئی تخصیص نہیں ہے, اچھا یعنی کوئی بڑائی نہیں ہے. ایسا علم غیب تو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کو بھی حاصل ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ توہین ہے یا تعریف ہے؟ اگر ایسا کہا ہے تو توہین ہی ہے. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان, حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1,00,000 روپے کا انعام.
अच्छा, ये जो बात भाई बोल रहे हो जी। ये कौन सा किताब में है ये? हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान। जी भाईजान। अच्छा ठीक है। कोई भी दुनिया का देवबंदी इस हवाले को गलत साबित कर दे, ये बता दे कि नहीं थानवी जी ने ये किताब नहीं लिखी है, या ये देवबंदियों की ये किताब नहीं है, या अच्छा। इस तरह की कोई किताब ही नहीं है, या देवबंदियों ने इस तरह का कोई अल्फाज कोई वर्ड ऐसा बोला ही नहीं है, तो मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो ये साबित करे कि ये देवबंदियों की किताब नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हिफ्जुल ईमान। हाँ, मैं हिफ्जुल ईमान लिख लो। लेता हूँ ये। हाँ बिल्कुल लिख लेता हूँ मैं। चलो ठीक है भाई, आगे बोलो दूसरे के बारे में। दूसरे के बारे में ये है, आप ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये सिर्फ आवाम का ख्याल है, आलिमों का भी? एक सेकंड भाई। हाँ, हमारे नबी को आखिरी नबी मानना। हिफ्जुल ईमान जो किताब को नाम क्या बताए थे? अरे हिफ्जुल ईमान ही नाम बताया मैंने। नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो नाम क्या बताया था, कौन लिखा इसको? मौलवी अशरफ थानवी। मौलवी अशरफ थानवी। हाँ मौलवी। अच्छा, मौलवी अशरफ थानवी। हाँ अशरफ थानवी, ठीक है भाई, आगे बोलो आप। लिख लिया? जी जी। सफा नंबर भी लिख लो, सफा नंबर 15 है, और सफे चेंज हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। देवबंदी हर बार में किताबें जब कराते हैं तो सफे चेंज करा देते हैं ताकि उस सफे में बात ना मिले। सफा नंबर कितना बोले? सफा नंबर 15 जो मेरे पास किताब है, 15। दारुल किताब देवबंद। ठीक है 15। हाँ दूसरा तो मैं ये कर दिया हूँ, मैं व्हाट्सएप में लिख के आप ही के पास चला गया, तो उसको ये कर देना भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भेज दीजिए। चलो ठीक है, बोलो भाई, आगे बोलो। दूसरा हवाला ये बताइए आप मुझे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या नहीं? आखिरी नबी है तो बिल्कुल आखिरी नबी है। आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ मैं। आलिम भी मानते हैं? सब पूरा मुसलमान जितना सब मानते हैं भाई। कुरान का भी यही फरमान है? जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। हुजूर का भी यही फरमान है? जी जी बिल्कुल। माशाल्लाह। अगर कोई ये कहे कि हुजूर को आखिरी नबी मानना ये आवाम का ख्याल है, आवाम के ख्याल में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना बड़ी माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अंबिया साबिक के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या तअखुर ज़माने में बिलजात कुछ फजीलत नहीं। ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान है या काफिर है? ज़माने के एतबार से जो हमारे नबी की फजीलत को ना माने, ना तस्लीम करे। मतलब जो ये नहीं मानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो वैसे ही काफिर हो गया। चलो काफिर हो जाए जी। मगर उसका कहना ये नहीं है, उसका कहना ये है कि हुजूर को सिर्फ अवाम आखिरी नबी मानते हैं। हाँ अहले फहम नहीं, अहले इल्म वाले नहीं, दानिशमंद लोग नहीं। दानिशमंद लोग नहीं? हाँ यानी समझदार लोग। दानिशमंद लोग, हाँ तो दानिशमंद लोग ऐसा कैसे कर दी? दानिशमंद लोग नहीं मानते, सभी तो मानते हैं भाई। जी यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है। पहले इल्म वालों को मालूम होता है, फिर हम जैसे ला इल्मों को मालूम होता है। अच्छा एक सेकंड में ये एक बात पूछ लूँ, और ये जो चारों काफिरों को डिक्लेयर कर दूं, क्लियर कर दूं, फिर आप अच्छा ठीक है भाई, बात करने मजा आएगा। बोल लो भाई, बोल लो। चलो तो हुजूर के लिए जो ये कहे कि जमाने के एतबार से हुजूर की कोई खसूसियत नहीं, कोई खासियत नहीं, अगर बिलफर्ज बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातिम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क न आएगा माज़अल्लाह। अगर कोई दावा करे कि वो नबी है, जैसे कादियानी ने दावा किया या और किसी शैतान ने दावा किया, तो क्या उसको तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ऐसा कैसे मान लिया? वो शैतान होगा, मरदूद होगा, दज्जाल होगा जी, जो दावा करेगा, जी मगर नबी नहीं होगा। जी बिल्कुल नहीं, है ना? जी जी। मगर मौलवी कासिम ननोतवी तहजीरुन नास किताब में कहते हैं, अगर बिलफर्ज बादे ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातिम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा भाईजान? तो बस फिर से बोलिए ये बात दोबारा। अगर बिलफर्ज बादे ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद, यानी आपके विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो, फिर भी खातिम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। और तो नबी फिर कैसे पैदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी है, और कोई नबी तो आने वाला है ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत
समझदार जब रहते हैं। आखिरी नबी है, जब ये बात हम मानते हैं तो फिर दूसरा नबी कैसे आ सकता है? जी, यकीन कामिल है हमारा कि आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नबी आ ही नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी जी, आप दो तीन वहाबियों बात देवबंदियों के साथ, वहाबियों देवबंदियों के साथ कम से कम 85% लोग धोखे में है, अनजाने में है, बेखबरी में है, लाइल्मी में है। अच्छा देवबंदियों के नापाक और गंदे अकीदों को जो है ना जानते ही नहीं बहुत सारे मेरे भाई। अच्छा ठीक उसमें है, एक आप भी मौजूद है। अच्छा ठीक है, मैं खुद भी इन देवबंदियों में रह चुका हूँ, मैं भी आपकी तरह पहले शामिल था इन लोगों में। अच्छा जी, मैं 15 साल ज्यादा इन लोगों में रह चुका हूँ। हाँ मैं देख ही रहा था मैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब दुनिया का कोई देवबंदी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे। अच्छा, ऐसा कोई देवबंदी पैदा नहीं हुआ? जी मेरे भाई, आप अगर चाहें तो आजमा कर देख ले, किसी बड़े से बड़े दुनिया के देवबंदी को लेके आए। वैसे तो देवबंदी तो है, लेकिन वो मेरा तो इतना मतलब पहुंच नहीं है ना कि मैं किसी को भी मतलब आपके लाके तो आपके चैनल है यूट्यूब पर, आपने सुना होगा बार बार। अरे वो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल मैं अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ऐलान करता हूँ कि दुनिया देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात करके अपने अकाबिरीन को हक पर साबित कर दे। अच्छा, बहरहाल ये बात गलत है कि अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, जी जी बिल्कुल, है ना। अगर कोई इस अकीदे को मानेगा माज़अल्लाह कि अब कोई नबी पैदा हो और हुजूर के खातमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा माज़अल्लाह, तो ऐसा शख्स जो है मुसलमान नहीं है। ठीक है, हमारे नबी ही आखिरी नबी है, हमारे नबी अव्वल भी है और आखिर भी है, ये हक है। जी ठीक है भाईजान, जी भाईजान बिल्कुल ठीक। मैं तुम्हारे और मेरे बाप की तारीफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे और मेरे बाप की यहाँ बात नहीं बता रहा, बल्कि रसूल पाक की बात बता रहा हूँ। ठीक है, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ। ये मनगढ़ंत बात किसी वजह से लिखी गई थी, थानवी को नबूवत के तख्त पे बिठाने की कोशिश की जा रही थी, मगर थानवी के ऐलान नबूवत करने से पहले पहले गुलाम अहमद कादियानी ऐलान नबूवत कर बैठा। समझे भाईजान? मतलब आपका कहने का मतलब ये थानवी जी मतलब खुद को नबूवत ऐलान करने वाले थे कि मैं नबी हूँ। किताब का नाम भी बताऊंगा भाईजान, किताब का नाम है रिसाला अल इमदाद। थानवी जी का उम्मती थानवी जी का कलमा पढ़ रहा है उस किताब में, और उस पर दुरूद भी पढ़ रहा है, और थानवी कह रहा है कि ये तुम्हारी मोहब्बत है जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो ताला मुत्तबे सुन्नत है माज़अल्लाह। तो क्या कोई सुन्नत का पाबंद हो जाए तो उसका कलमा पढ़ना जायज हो जाएगा भाईजान? सुन्नत का पाबंद हो या कुछ भी हो, तो कलमा तो सिर्फ नबी का है, कलमा दूसरा और किसका कलमा आ जाएगा? बेशक, सुभान अल्लाह यार, बहुत समझदार आदमी हो यार आप तो, माशाल्लाह काफी जानकारी रखते हो आप। नहीं, जानकारी तो मुझे नहीं है, आप बोलिए मैं सुन रहा हूँ। नबी का कलमा पढ़ना कुफ्र है, है ना? जी जी, गैर नबी का कलमा तो पढ़ना कुफ्र है ना? अरे नबी गैर नबी आएगा कहाँ से? नबी कोई आ ही नहीं सकता, गैर नबी सिर्फ नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और कोई नबी है ही नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए, तो जो ये कहे माज़अल्लाह के हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा, तो वो काफिर है ना? जी माशाअल्लाह। चलिए अब तीसरे को लेते हैं लाइन पर। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जिसके बारे में जो बोल रहे हैं, ये बात जो कही है, तो उस किताब का भी नाम थोड़ा बता दो भाई। तहजीरुन नास बताया था ना भाईजान, तहजीरुन नास। तहजीरुन नास, जी जी जी। अच्छा चलो ठीक है। और जो पहली वाली मैंने बात बताई थी कि हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, ये सफ़ा नंबर 4-5 पर है, और जो मैंने अब बाद वाली बात बताई है ये सफ़ा नंबर 40 पर है, जो मेरे पास किताब मौजूद है। अच्छा ठीक है। हाँ अब लेते हैं मौलवी रशीद अहमद गंगोही को। अच्छा ठीक है जी, ये बताइए भाईजान, हुजूर के लिए जो इसकी तो कई सारी बातें हैं बहरहाल, समझे? चलिए एक छोटी सी इसकी बात बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई। आप मुझे चलिए इतना ही बता दीजिए भाईजान, अकीदा सबके लिए एक ही होना चाहिए या अलग अलग? अकीदा? हाँ। किस चीज के बारे में अकीदा भाई? कोई हमारे नबी के लिए तो इल्म गैब ना तस्लीम करता हो मगर अपने बुजुर्गों के लिए तस्लीम करता हो, ये कहाँ का इंसाफ है? नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
कितने इल्म गैब था हाँ और कितना नहीं था, हाँ इस बात को मैं मतलब नहीं जानता हूँ। और वो क्या कहते हैं, इससे ये सब इस बात को मतलब मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि इस चीज का फैसला करना मेरे बस का बात नहीं है, क्योंकि इंसान किसी चीज का फैसला करे तो उसका फैसला वही कर सकता है जो उससे बड़ा हो। आप तो थानवी जी के इल्म का भी फैसला नहीं कर सकते, थानवी जी को कितना इल्म था कितना नहीं था, मेरे नबी की बात तो दूर हो गई। जी वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो देखो भाई मैं आपसे कम जानता हूँ, इसलिए मैं आपका इल्म का फैसला नहीं कर सकता हूँ, माशाअल्लाह, आपसे कम जानता हूँ मैं। माशाअल्लाह। चलिए अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं यही बोल देता हूँ। कुरान का फैसला है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है। कुरान का फैसला है, कुरान का फैसला मैं भी मानता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत पढ़ के भी बता दूं क्या? नहीं भाई मैं मानता हूँ, बोलो ना। अच्छा माशाअल्लाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हमारे नबी के अलावा और कौन कौन रहमतुल लिल आलमीन है इस कायनात में, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक? और कौन कौन है इसके बारे में? और कौन कौन से नबी को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा? और किसी के बारे में तो हम नहीं सुने फिलहाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनोगे कहाँ से, किसी के लिए आया ही नहीं है। अच्छा हाँ, मगर उलमाए देवबंद का ये बहुत बड़ा मौलवी क्या बोलते हैं इसको, गौस आजम देवबंदियों का, मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवबंदियों का गौस आजम है। गौस आजम के बारे में तो हम सुने वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हमारे हैं वो, तो वो आपके हमारे गौस आजम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मगर ये रशीद अहमद गंगोही देवबंदियों का गौस आजम है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, और ये देवबंदियों का रब भी है। क्या है? रब देवबंदियों का पालने वाला। ऐसा मत बोलो, किसके दिल में क्या है वो आप तो नहीं जानते हो ना। मैं भाईजान मैं भी तो देवबंदी, मैं भी तो देवबंदी हूँ, तो मैं तो रब तो नहीं मानता हूँ, रब तो सिर्फ रब ही को मानता हूँ। अल्लाह पहले ही बताया एक बात, आपके दिल से एक बात को मैंने क्लियर किया कि देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं। धोखे में है, क्लियर किया ना? अच्छा चलो ठीक है भाई, ऐसा आगे बोलो। मैं तो रब नहीं मानता हूँ, मैं जानता हूँ मेरा रब जानता है। जो भी मैं बोलूंगा उसका मैं हवाला दूंगा, सबूत दूंगा। अगर कोई भी दुनिया का देवबंदी मेरे बताए हुए हवाले को, मेरी बात को गलत साबित करते हैं, देवबंदियों की किताब में वो मौजूद ना हो, तो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम है। अच्छा ठीक है, आगे बोलो भाई। 1 लाख रुपए पेड़ पे नहीं हिल रहा है। नहीं भाई, 1 लाख मेरे लिए तो नहीं। हाँ ठीक है, बात सच्ची है तो मैं 1 लाख क्या, मैं 5 लाख भी बोल दूं, 10 लाख भी बोल दूं, जब नहीं जाने के तो नहीं जाने के। ये मेरा ईमान है, समझे जी। इन सब चीजों को मैं देखा हुआ हूँ, पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी। दुनिया का कोई भी देवबंदी अल्हम्दुलिल्लाह इसको गलत साबित नहीं कर सकता, और ना ये कह सकता कि नहीं नूर हसन ने झूठ बोला है, ऐसा कुछ देवबंदियों की किताबों में नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने जो ये रब वाली आपको बात बताई है, इस किताब का नाम है मरसिया। ये देवबंदियों की किताब है। रशीद अहमद गंगोही के मरने के बाद इसकी तारीफ कर रहे थे ये लोग। कौन लोग तारीफ कर रहे थे इसकी? देवबंदी। अच्छा हाँ, बहरहाल तो देवबंदी मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवबंदियों के गौसे आजम के नजदीक, देवबंदियों के उलमा औलिया, समझे, ये भी रहमतुल लिल आलमीन है। यानी हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है ही है, हुजूर के अलावा भी ये देवबंदी लोग अपने उलमा को, औलिया अल्लाह को, ये अंबिया को रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। तो अब मुझे ये जानना है कि कौन से वो नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है, या वो कौन सा देवबंदी है जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। रहमत होना अलग है, रहमतुल लिल आलमीन होना अलग है। रहमतुल लिल आलमीन यानी आलम के लिए रहमत बना के जिसको भेजा गया हो, सारी कायनात के लिए जिसको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा गया हो, रहमत बना के भेजा गया हो, उसको कहा जाता है रहमतुल लिल आलमीन, यानी तमाम आलम के लिए रहमत है। कौन सा ऐसा देवबंदी पैदा हो गया जो आलम के लिए रहमत बन के आया, बताइए। आपने खुद कहा कि हमने नहीं सुना कि हुजूर के अलावा कोई और रहमतुल लिल आलमीन बन के आया हो, कोई नबी, कोई पैगंबर, है ना। कम 1,24,000 पैगंबर
कब होते हैं? जी जी बिल्कुल। किसी को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर नहीं भेजा, सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी हैं। समझे भाईजान? जी जी। तो ये अकीदा भी इनका कुरान के खिलाफ है। अच्छा ठीक है। हाँ, और रशीद अहमद गंगोही के नजदीक नापाक कौवा, काला कौवा ये खाना सवाब है। ये जो जाने मारूफा है, ये जो आम कौवा पाया जाता है, कह करता फिरता है, ये खाना सवाब है देवबंदियों के नजदीक। जी, मैं तो नहीं खाया हूँ कौवा आज तक कभी। आप मत भाईजान, मैं तो पहले कह रहा हूँ देवबंदियों में 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं। मैंने तो ये बात पहले क्लियर कर दी आपकी। अच्छा, अब आप बार बार ये बात कहोगे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो मैं तो पहले ही कह बैठा हूँ 85% से ज्यादा लोग धोखे में हैं, इन शैतानों के नापाक अकीदे से वाकिफ ही नहीं है। अच्छा चलो आप एक और के बारे में बताइए तो भाई। अभी तो 2 बाकी बचे हैं। अच्छा सॉरी मतलब हाँ 2 के और बारे में बता दो भाई। अच्छा हाँ 3 हो गए, 1 बचा। हाँ, थानवी हो गया, कासिम ननौतवी हो गया, रशीद अहमद गंगोही हो गया। अभी इसकी तो और भी बातें मौजूद हैं। बहरहाल चलिए ज्यादा बात को लंबा ना करके शॉर्ट मिनट में बात को खत्म करता हूँ। जी बिल्कुल। ये बताइए हमारे नबी का इल्म ज्यादा है या शैतान का इल्म ज्यादा है? वो तो हमारा नबी का ज्यादा है। हाँ, जो ये कहे माज़अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान व मलकुल मौत के इल्म से कम है, ऐसा शख्स मुसलमान है आपकी नजर में काफिर है? और ये हमारे नबी की तारीफ है या तौहीन है? तौहीन है ना? हमें अल बराही की बातिया एक सेकंड भाई, उधर से बंद करवाओ जरा आवाज। बोलो भाई। मौलवी रशीद अहमद, ये मौलवी खलील अहमद अमेठवी की किताब है अल बराइनुल कातिया, ये रशीद अहमद गंगोही ने लिखवाई है। और फिर उस किताब में ये भी कहा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू जबान उलमाए देवबंद से सीखे। मदरसा दारुल उलूम देवबंद में हुजूर ने उर्दू सीखी है। अच्छा, क्या ये बात सही है? अल्लाह ताला ने उर्दू नहीं सिखाई थी हुजूर को? जो काम अल्लाह ताला से बच गया था, छूट गया था, वो काम उलमाए देवबंद ने जो है पूरा किया। अच्छा ठीक है भाई। हवाला एक भी कोई गलत साबित करते तो 1 लाख रुपए इनाम के। अच्छा ठीक है। हो गया? आप कहिए अपनी बात कोई। हाँ ठीक हो गया ना आपका पूरा? और भी कई सारी चीजें हैं। अरे ठीक है, वो बाकी साइड में रख दीजिए, मैं मान गया, मैं मान रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे ये जो ये जिसके बारे में जो बताया है ना अभी, किसके बारे में? ये जो 4 ये मतलब 4 जो उलमा जिन के बारे में बताया अभी आप, मैं तो इन सबका नाम ही नहीं जानता हूँ। ठीक है, पहले कह रहा हूँ भाईजान आप धोखे में हो यार इन लोगों के साथ। धोखे में नहीं भाई, एक सेकंड मेरे बात सुन लो, एक सेकंड। धोखे में नहीं, एक आम आदमी, एक सादा इंसान, ठीक है, एक आम आदमी जो होता है, वो बरेलवी में हो या देवबंदी में हो या अहले हदीस में हो, जिसमें भी हो, तो जिसको जो ज्यादा नहीं पढ़ता है तो वो क्या जानेगा? वो तो नहीं जानेगा ना। हाँ बात सही है भाई, मैं भी रहा हूँ ना देवबंदियों में, मैं तो इनको हाँ ठीक है, आप रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरा बात सुन लो, आप रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अभी भी ये सब बात भी यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं, हाँ, अगर मान लिया जाए कि मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे कि कोई एक इंसान अगर कुछ किया हो, ठीक है, हाँ, मुझे तो पता नहीं, आप बोल रहे हैं मैं मान रहा हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत जानकारी लूंगा इसके बारे में, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप लेकिन मैं अभी आपसे जी मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसके वास्ते जो आप ये जो यूट्यूब पे जो वीडियो ऐसा डाल रहे हैं कि मतलब ये क्या नाम उसको देते हैं आप देवबंदियों को? देवबंदर। अच्छा, ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। सही है? हाँ। अच्छा ठीक है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हेलो सुन रहे हैं ना आप? हाँ कहो आप अपने हाथ पे सही है? हाँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सही मसलक पर हूँ, हक पर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो ईमान वालों के साथ हूँ। ठीक है, आप सही है ना? बस ये बात खत्म करते हैं। आप सही हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो अगर कोई इंसान किसी को सुधारना चाहे, हाँ,
किसी को सुधारना चाहे तो वो प्यार से सुधरेगा या वो कैसे सुधरेगा वो? आपसे मैंने किस तरह बात की भाईजान, ये बताइए। देखिए बात की बात अलग है भाई, मैं बात की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए वो बात सही है तो सही है। आपने सुनिए, आपने मुझसे अच्छी बात की, प्यार मोहब्बत से बात की, मैंने आपसे प्यार मोहब्बत से बात की। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा नहीं तू देवबंदी है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू काफिर है, तू ये है, तू वो है। मैंने तो तुमको उल्टा सीधा नहीं बोला। हाँ भाईजान, जी बिल्कुल सामने वाला कोई बंदा आएगा, एक मिनट, अब सामने वाला कोई बंदा आएगा और जो है मेरे नबी की शान में तौहीन करेगा, मेरे नबी के कमाल को तस्लीम नहीं करेगा, तो मैं उसे अपने सिर पे बिठा के रखूंगा या लाते घोसे मारूंगा? जूते लाते सर पे बैठा के तो नहीं रखोगे। अच्छा मैं एक बयान सुना था। अच्छा, तुम्हें तुम्हारे नबी की मोहब्बत प्यारी है या देवबंदियों की मोहब्बत प्यारी है, ये बताओ। नबी का मोहब्बत प्यारी है, मैं देवबंदी हूँ। जब नबी की मोहब्बत प्यारी है तो जो हमारे नबी की शान में इस तरह की गलाजत बक रहे हैं तो मैं उनको इतना भी नहीं बोल सकता। क्या हमारे नबी के इल्म को शैतान के इल्म से कम बताया जा रहा है तो मैं इनको देव का बंदर भी नहीं बोल सकता। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बात तो सुन तो लो भाई। अगर मैं पहले ही क्या बोला मैं आपको कि अगर कोई एक कुछ करे। अच्छा मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये एक मैं अगर बयान सुन रहा था, ठीक है, तो एक बिच्छू पानी में गिर गया था। अरे यार बयान मत सुनाओ मुझे, ये सुन तो लो भाई, सुन तो लो एक सेकंड, ये एग्जाम्पल है। कहानी में बहुत सुना दूंगा। नहीं आप जरूर सुना सकते हैं, मैं सुन तो लो मेरा बात। तो बिच्छू जब उसको पानी से निकाला गया तो वो बिच्छू डंक मार लिया। जब उसको निकाल के जमीन पर रखा गया तो वो भिगा हुआ था, तो जैसे ही निकालने की वजह से उसको डंक मारा और वो भिगा हुआ था, चलने की कोशिश किया तो फिर से पानी में गिर गया। तो फिर से मतलब उसको जब निकालने गया तो फिर डंक मारा। तो इस तरह से मतलब 3-4 बार 8-9 बार उसको डंक मारा, ठीक है। तो जो उसके बगल में कोई बंदा था तो वो कहा कि आप इसको बार बार क्यों निकाल रहे हैं, हालांकि आप इसको निकालते हैं पानी यही आपको डंक मारता है। उसका जवाब क्या पता है? उन्होंने बोला कि ये जब अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? मतलब अच्छी आदत तो ये है ना कि वो पानी से निकाल रहा है, उसको बता रहा है। ये अच्छी बात है, ये खराब बात है? ये अच्छी बात है, ये खराब बात है भाई साहब? अरे भाई तो मैं वही तो कर रहा हूँ। लोग मुझे सुन तो लो जी, जो आपने मुझसे कहा कि भाई तुमने देवबंदियों को क्यों ऐसा बोला, क्यों किया, क्यों नहीं किया, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपना अच्छा काम तो नहीं छोड़ सकता ना। आप अच्छा काम मैं छोड़ने भी नहीं बोल रहा हूँ भैया, एग्जाम्पल तो मैं आपको देना चाह रहा हूँ भाई। हाँ वही तो मैं कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। आप अच्छा डंक मार रहे हैं, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्यार से समझा रहा हूँ। आप प्यार से समझा रहे हैं ना? हाँ। तो मैं तो आपको वीडियो देख रहा था, उसमें आप तो बड़ी गंदी गाली बक रहे थे। कौन सी मेरी ऐसी वीडियो है और कब की है वो जरा मुझे बता दीजिए। अरे मैं भाई कल ही देख रहा था, मैं अभी बता देता हूँ। कब की है वो, कितने टाइम पुरानी है? 1 ईयर पहले। हाँ तो हो सकती है उस वक्त की हो कोई, क्योंकि मैंने इससे भी ज्यादा धुलाई की है देवबंदियों की, क्योंकि मैं भी एक सादा आदमी हूँ, एक आम आदमी। देखो भाई बात धुलाई करने की नहीं है, आप बात को समझ नहीं रहे हो। मैं वही बात, अच्छा ये बताइए क्या नबी वली अल्लाह ताला की शान के मुकाबले में ज़र्रे नाचिस से कमतर है, चमार से ज्यादा जलील है? नबी वली हाँ अल्लाह ताला की शान के मुकाबले में ज़र्रा नाचिस से कमतर है? अल्लाह ताला के मुकाबले में ज़र्रा नाचिस से कमतर, चमार से ज्यादा जलील। यानी चमार की तो कोई हैसियत है, ज़र्रे की तो कोई हैसियत है, अंबिया औलिया की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत है ना, क्यों हैसियत नहीं है? अल्लाह ताला क़यामत के दिन पहले नबियों को सिफारिश करने का मौका देगा, फिर अल्लाह वाले को देगा, फिर जो अल्लाह के नेक बंदे हैं सबको सिफारिश करने का मौका मिलेगा। ऐसा कोई हैसियत जो मेरे नबी को मेरे वलियों को कोई ऐसा बोले माज़अल्लाह कि अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में ज़र्रा नाचिस से कमतर है, चमार से ज्यादा जलील है, तो मैं ऐसे शख्स की तारीफ करूं? मैं तारीफ अच्छा नहीं बोल रहा हूं, आप ही को ले लीजिए, आप ही को लेता हूँ। आपके बाप को मैं रोज गाली बकूं, आप मेरे साथ क्या करोगे? एक दिन आपने 2 दिन बर्दाश्त किया, 3 दिन बर्दाश्त किया, 1 हफ्ता बर्दाश्त किया, 1 महीना बर्दाश्त किया, लास्ट में क्या करोगे? या तो गोली मार दोगे या पकड़ के बीच में रास्ते में जो है कत्ल कर दोगे, छुरी मार दोगे, या गाली बकना शुरू कर दोगे। आदमी हूँ मैं, एक सिंपल आदमी हूँ, लेकिन आप जब इतना बड़ी चैलेंज कर रहे हो भाई आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चैलेंज मेरा कयामत तक है, मैं जिंदा हूँ। रिलैक्स हो जाओ भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको ये मतलब चैलेंज है तो मैं मान रहा हूँ। ये तो आप जो चैलेंज दे रहे हैं ना इतना बड़ा, बिल्कुल तो आप अगर चाहते हैं कि जितने हवाले मैंने बताए हैं उन हवालों पर इनाम दिए देवबंदियों की तरफ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है मेरा, आप सही हो ना, तो हम गलत हैं।
बिल्कुल तो गलत है आप बंदियों के साथ। सुनिए सुनिए, एक सेकंड सुनिए। ये जो अभी हम लोग का जो अमीर है दिल्ली में, क्या नाम है उसका, तो भूल जाए, मौलाना साद साहब जी, मौलाना साद साहब हो गया, और ये क्या कहते हैं इसको, मौलाना तारिक जमील साहब हो गया, ये सब देवेंद्री, आपको तो पता ही होगा। तो आपका नजर क्या, मतलब ये सब तो देवेंद्री अरे होगा। यार कौन बंदा ये बार बार कॉल कर रहा है यार, कैसा आदमी है? कौन है भाई, कौन है? अरे पता नहीं कौन है, 1 घंटे से बार बार कॉल करे चले जा रहे हैं, ऐसे चैन ही नहीं है, पता नहीं कौन इंसान है। आप तो काम ही ऐसा कर रहे हैं भाई, कॉल तो कोई भी कर सकता है आपके पास। अरे आपसे बात हो रही है तो उसको सुकून लेना चाहिए ना थोड़ा बहुत। बार मैं इधर कुछ काम कर रहा हूँ अपना, तुमसे बात भी कर रहा हूँ और मेरे काम में दखल अंदाजी कर दिया। अच्छा, उसका नंबर अच्छा, मिला पता तो भाई बात करते करते। अच्छा सुन लो एक सेकंड भाई। हाँ तुम सुनाओ, टेंशन उससे है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ मोबाइल में, तुमसे बात भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये हाँ। बोल रहा था भाई कि ये जो हमारा जो मौलाना साद साहब है और ये जो मौलाना तारिक जमील साहब है, ये आपके नजर में कैसा है, मतलब आपसे गए गुजरे है ये मेरी नजर में ऐसा है कि इस शैतान ने, तुम्हारे साथ ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिखारी बताया माज़अल्लाह। तो मौलाना साद साहब, हाँ, आपने ये कहाँ सुना और ये था? 1 नंबर का गुंडा है, ये मौलाना वोलाना कुछ नहीं है। भाई थोड़ा मालूम है तुम्हें, ये जो दिल्ली का जो मरकज जिसने कब्जाया, किस तरह से कब्जाया है, इसके कब्जे में आने पर इसमें कांड भी हुआ है, कत्ल भी हुआ है, मालूम है आपको? मुझे तो नहीं और मालूम नहीं। ये दबंगों के साथ रहता है, गुंडों बदमाशों मवालियों के साथ रहता है, मालूम है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है ये सब। तो फिर मालूम करो ना यार, क्यों अंधेरे में हो? मैंने तो पहले ही कहा है कि आप अंधेरे में हो, धोखे में हो। भाई आपको ये कैसे मालूम है? फिर वही बात, मैं सबकी खबर रखता हूँ। कैसे भाई, मुझे कुछ फिर वही बात, जाके पूछो ना, जाके पूछो पहले किस पे था ये मरकज, किसके कब्जे में था, अब किसके कब्जे में है, और ये इसके कब्जे में आने पर जो है कत्ल गारत हुआ था कि नहीं हुआ था, पूछो ना जाके उससे। आप कुछ बताओगे तो सही फिर है। वही बात। मैं नहीं जानता हूँ, आप तो मुझे हाँ तो बताना पड़ेगा ना। मेरे दोस्त जाइए मरकज में अभी। हाँ। हाँ मरकज में जाइए, मरकज मेरी कैसे बात चला कराइए जाऊं? साथ मैं में। यहाँ हूँ अभी, मरकज कैसे चला जाऊँ? आप जानते हैं तो आप ही बता दो ना मुझे। ये मरकज जो है ना, बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद साथ के पास आया, साथ के कब्जे में आया। अच्छा, हाँ आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे कि मौलाना साहब को, वो तो मेरा हिसाब से तो वो बहुत नेक इंसान, बहुत परहेजगार इंसान। अरे वो नेक नहीं है, आप जो गुंडा बोल रहे हैं कि ये पैसों के लिए सब किया है इसने, जो इधर उधर से पैसा आता है सब उसके लिए किया है इसने। अच्छा, हाँ मुझे लगता है आप अरे कहीं इतनी ऐसा ना हो बिल्डिंग है, कि- इतनी बिल्डिंग है, इतनी जो है लग्जरी गाड़ियों में जो ये घूमता है, इसके बाप का पैसा आ रहा है, इसकी कहीं फैक्ट्री चल रही है? अरे यही तो एक फैक्ट्री है, अच्छा, यही तो दिल्ली में एक कंपनी है, ये फैक्ट्री है पैसा बनाने की। अच्छा, हाँ मेरे भाई, इसकी कौन सी कोई जमीन जायदाद है बताइए जरा आप, कौन सी जमीन है इसकी, कौन सी फैक्ट्री चल रही है इसकी, इसके बाप की अपनी जाति कौन सी थी? अरे सब जो भी किया है इसने मरकज से किया है मेरे भाई। इतने आलिशान जो मकान बनाए हैं, इतनी आलिशान जो गाड़ी इसने ली है, सब मरकज के मरकज की वजह से है। अच्छा, मैं ये जो जितने भी जो मतलब उलमाए दीन है जो तकरीर बयानात वगैरह करते हैं, फिर वही बात, मेरा बात तो सुन लो भाई, उन सब के पास भी तो गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मतलब तो वो उनकी अपनी देवेंद्री हो या जाति, बरेलवी हो। हाँ तो उनकी अपनी जाति है, आवाम उनको पैसा देती है, और इसके लिए आवाम तो दुनिया भर से, उसको- इसके लिए दुनिया भर से पैसा आता है। दुनिया भर से पैसा मालूम आता है। करके देखना यार, आप धोखे में हो मेरे भाई, आप मालूम करके देखना, तहकीक करके देखना क्या ये बात सही है। फला बरेलवी ने मुझे बताया है ऐसा, क्या ये बाहर से यहाँ पैसा आता है लोगों के लिए, आप पूछ के देखना, अच्छा, ठीक मालूम है। करके देखना ठंडे मैं- दिमाग से। हाँ ठीक है, ठंडे, मैं ठंडा भी ठंडा ही हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं हाँ। उस चीज का नहीं हूँ जो मैं गुस्सा हो जाऊँ। अब वैसे भी मुझे किसी पर फतवा लगाने का इतना बड़ा इल्म नहीं है मुझे, तो मैं किसी पर भी फतवा लगा दूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं थोड़ा जाहिल हूँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप सही हैं तो आप हमको सही कीजिए, तो आप सही करने का जो तरीका आपको वो इस टाइप का तो नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा तरीका नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको कुछ दावत देने हजरत जाते- उमर फारूक आजम का तर्ज अमल देखा था? देखा तो नहीं, मैं सुना हूँ भाई। सुना है ना, जी, उसी को बोल रहा हूँ। तो आप तो बोल रहे कैसे थे मिजाज के? मिजाज के कैसे थे वो, जैसे थे वो वैसे थे। कैसे थे, क्या सुना है आपने? वो बहुत मतलब वो गर्म मिजाज के थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे मिजाज के थे? वो तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान थे, मतलब वो बहुत ठंडे दिमाग के थे। ठीक है। अरे
हुजूर के उम्मती, हुजूर के गुलाम कैसा भी हो सकता है, कोई तेज भी हो सकता है, कोई जो है बिल्कुल एकदम नॉर्मल भी हो सकता है, और कोई बिल्कुल बहुत ठंडे मिजाज का भी हो सकता है। हाँ, तो इसका मतलब एग्जाम्पल इसको क्यों दिए, मतलब कुछ? अरे तो हम तो उम्मती है ना, हुजूर का कोई गुलाम बर्दाश्त कर जाता है, कोई नहीं करता है, तो मैं नहीं करता हूँ। नहीं 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 नहीं, यही तो गलत है ना, आपको करना चाहिए। फिर वो आपको क्यों करना चाहिए? कोई आपको गाली दे तो आपको सुनना चाहिए। तुम सुनोगे गाली, मैं नहीं सुनूंगा। तुम सुनोगे गाली, मैं नहीं सुनूंगा। मैं क्यों सुनूंगा भाई? मैं बिल्कुल सुनोगे तुम। क्यों सुनूंगा भाई मैं? तुम हमारे नबी के दुश्मनों के साथ हो, इसलिए तुम भी गाली सुनोगे। अगर मुझे, हाँ, अगर ऐसा कहोगे कि तुम गाली, अगर तुम्हें कोई गाली बके तो सुनो, मैं नहीं सुनूंगा। गाली तुम्हें सुनना पड़ेगी। अगर मैं तुम्हें गाली बक दूं अभी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा। हाँ, तो जो हमारे नबी की शान में तौहीन करता है, गाली बकता है, तो वो बुरा नहीं लगता तुम्हें? अच्छा, तो बुरा लगता है तो आप न्यूज देखते हो ना, नरसिम्हा को तो जानते ही होगे। फिर वही बात। अरे जानते हो या नहीं भाई? हैं? जानते हो या नहीं? उस शैतान को कौन नहीं जानता है? तो उसके बारे में तो ऐसा कोई वीडियो नहीं डाले आप? जाके देखो ना अपने उसके पापा के बारे में। हाँ, जाके देखो, सुनो। तुम्हारा असगरी बेगम उसका पार्ट भर रहा था, उसको भी धोया, दोनों को धोया। उसका पार्ट क्या भर रहा था? अभी तुम मुझे जानते नहीं ठीक तरह से अल्लाह। मैं किसी दुनिया के शैतान से नहीं डरता। मैं सिर्फ अपने रब से डरता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं किसी दुनिया के शैतान से नहीं डरता। अरे कौन डरता है भाई? मैं भी तो नहीं डरता हूँ। जाके मेरे YouTube पे अभी जो है सर्च करो, नरसिंहानंद या देवबंद, ठीक है? मुसलमानों का दुश्मन कौन, नरसिम्हानंद या देवबंद? जाके सुनो, जाके उस पे। अच्छा, ये आप इसको जानते हो ना भाई? अरे जाके नरसिम्हानंद के नाम से ऑडियो निकालो मेरी। ठीक है, मैं वीडियो निकाल लूंगा। आप अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी वीडियो निकालूं। बोलो, बात क्या कर रहे हो तुम? अपने देवबंदियों को कुफ्र के घाट से उतारो, इधर उधर की बातें मत करो। शैतानी फैलाने लगा तू इधर उधर की। नहीं, मुझे अपने देवबंदियों को, जो तुझे बुरा लगा देवबंदियों के ताल्लुक से, उस ताल्लुक से बात कर। मुझे देवबंदियों के ताल्लुक से बुरा नहीं लगा। और क्यों बुरा लगा? आप ये जिसके बारे में भी बोलोगे ना, जिसे मान लीजिए कोई मेरा देवबंदी, कोई अगर देवबंदी से, मतलब देवबंदी को ताल्लुक रखने वाला अगर कोई ऐसा गंद फैलाता तो मुझे वो भी बुरा लगता। वो बरेलवी के बारे में हो या तो फिर वो, मतलब वो क्या कहता है, अहले के बारे में कोई भी ऐसा बोतला तो वो मुझे बुरा लगता है, वो जिसके बारे में भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं देवबंदी हूँ इसलिए, ये नहीं है। देवबंदी तो हो ही तुमने खुद कहा है मैं देवबंदी हूँ। देवबंदी होता है, देवबंदी तो हूँ भाई, आप बात समझे नहीं हो। तो देवबंदी होता है काफिर। क्या तुम काफिर हो? बोलो, तुम्हें क्या लगता है मैं काफिर हूँ? भाई तुम बोलो, तुमसे खुद पूछा हो ना, देवबंदी होता है काफिर जो देवबंदी है हकीकत में। देखो, तुम क्या लगता है मैं देवबंदी हकीकत में? तुमने तो हकीकत में बोला ना, हकीकत में। हाँ, मैं तो हकीकत में। मैं कह रहा हूँ तुम धोखे में देवबंदियों के साथ हो। मैं कह रहा हूँ तुम धोखे में देवबंदियों के साथ हो। मैं जैसा भी हूँ भाई, आप मेरे को फतवा लगाओ ना, मैं क्या हूँ? काफिर हूँ मैं? थानवी के कुफ्र को कुफ्र समझते हो कि नहीं समझते? मैं तो जानता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या समझू? बस यही औकात भी है। चलो ठीक है, आप बताओ मैं क्या हूँ? मुझे क्या पता कौन हो? तो फिर तुम तो सारे देवबंदी को काफिर कह रहे हो। मैंने कब कहा कि सारे देवबंदी काफिर है? एक भी किसी ऑडियो में दिखा दे तू आज तक, या जो तुझसे मैंने अभी भी बात की है इस पूरी ऑडियो में सुना दे कि मैंने हर देवबंदी को काफिर कहा है। देवबंदर जो बोल रहे हो, देवबंदर जो टाइटल देते हो यूट्यूब पे वीडियो का, तो तू देवबंदर है कि नहीं है? देवबंदर ये बता, तू देवबंदर? मैं देवबंदर तो नहीं हूँ, मैं देवबंदी हूँ। मैं देव का बंदर है तू? क्या देवों का बंदर हूँ? तू देव का पुजारी है, देव का बंदर है, देव की भक्ति करने वाला इंसान है। देव को भक्ति करता हूँ मैं, लेकिन अपने रब की भक्ति करता हूँ। नहीं, देव की भक्ति करता है। देव कैसे देव की भक्ति करता हूँ? मैं करता तो मैं, आप कैसे जानते हैं? देव तो हिंदुओं के यहाँ होते हैं। मैं आपको कैसे पता कि मैं देवों का भक्ति हूँ? अरे भाई, बाबा रामदेव ने बोला है कि मैं ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे देव की इबादत की जाती है, देव को माना जाता है, देव की जो है बंदगी की जाती है। अरे वो कौन क्या कहता है, वो छोड़ो। आपको इनमें गैर है क्या? कैसे छोड़ो लल्ला, ऐसे कैसे छोड़ो? नूर हसन के आप जो बोल रहे हो नूर हसन, अरे नूर हसन को क्या, नूर हसन कौन है यार? नूर हसन को मैं जानता भी नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ आपको इनमें गैर है क्या? बोल रहा हूँ नूर हसन को नहीं जानता। अरे ठीक है, इतने बड़े नहीं हो गए भाई, इतने बड़े नहीं हो अभी। तुम्हारी जमात देवबंद का कोई ऐसा मुल्ला पैदा नहीं हुआ अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह नूर हसन से बात करके अपने अकीदे पे टिक के अपने अकाबिरीन को अपना मान के जो है
اس नाचीज के सामने अपने आप को अपनी जमात को हक पर साबित करके चला जाए। देखो भाई, ये दूसरे को खराब कहने से पहले, दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसको ये देखना चाहिए कि 4 उंगली उसी की तरफ रहता है भाई। बिल्कुल, तो तुम्हारे बाप दाना इन देवों के बंदरों ने हमारे नबी की तरफ उंगली उठाई तो 4 उंगली उनकी तरफ हो गई। बरेलवी जो है होता है ना भाई, बरेलवी वो सिर्फ तुम जैसे लोग जो है ना भाई तो फिरका वारियत फैलाते हैं भाई। नहीं, तू फिरका वारियत फैला रहा है। तुझे मैंने नहीं, इतनी नहीं। बातें बताई, अगर तुझे हमारे नबी से मोहब्बत होती ना तो हाँ। फौरन तू इनसे कहता हाँ साले ये काफिर है, 1 नंबर के हरामी है, मैं इनसे जुदा होता हूँ। मेरे नबी को ऐसा ऐसा बोला इन हरामियों ने, तो तू अभी अगर नबी का गुलाम होता, अगर तू नबी का होता ना तो तू अभी इनको इन काफिरों से अलग हो जाता, जुदा हो जाता। जुदा होता। तू नबी का नहीं, तू इन काफिरों का है। सुनो सुनो, एक सेकंड सुनो। जो जिसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है, वो तो तुम्हारे बात में कैसे मालूम? जो मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारा बात कैसे मालूम? तुम तो इतने बड़े किताबें मैंने बताई है, मैंने नाम बताए किताबों सुनो, एक सेकंड, सुन चलो, अरे भाई, एक सेकंड। गलत साबित होने पर नाम ले। चलो, तुम तो इतना बड़ा भी उलमा दिन हो नहीं कि तुम नहीं सकते हो, मैं उलमा हूँ। अरे पागल होगा ले क्या? मैंने अभी तक किसी अपनी ऑडियो में जब तू बात कर रहा है मैंने अभी बोला है हर बात कही नहीं जाती है भाई। अबे जाहिल आदमी, हाँ, तू अपने तरफ से कह देगा शैतान कहीं के, तू अपनी तरफ से कह देगा सब कुछ। अच्छा, मैं तू भी समझ लेगा, शैतान जो तू समझ लेगा वही हो जाएगा। मैं भी शैतान हूँ। और शैतान तो है ही, शैतानियत फैला रहा है, शैतानियत बक रहा है। अच्छा, मैंने जब तुझसे अपने आप को आलिम कहा ही नहीं है तो तू कैसे करा दे? मैं तो क्या कहते हैं, मैं जानकारी लेने के लिए आपके पास कॉल किया हूँ। तो मैं जाहिल उल्लू का पट्टे, तो तूने ये कैसे कहा कि मैंने अपने आप को आलिम बताया या आलिम माना? तुम बताने वाले क्या बात है? जब कोई इंसान इतना बड़ा चैलेंज करता है तो जो आलिम होता है, जिसके पास इल्म हो, वही चैलेंज करेगा। जरूरी है कि आलिम ही कहेगा? अगर कोई नादान इंसान भी समझ जाएगा, इन शैतानों के कुफ्र को जान जाएगा तो वो भी दावा कर सकता है। ऐसा कैसे समझ जाएगा? जो बगैर पढ़े लिखे वो कैसे? जब तक पढ़ेगा नहीं भाई, तब तक जाहिल नहीं तुम्हें आएगा। पढ़ा ही तो है। हाँ, तो आलिम इन किसको कहते शैतानों हैं की भाई? शैतानियत मैंने पढ़ी है, तुझे बताई है और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। अरे इल्म किसको कहते हैं? अच्छा ये इल्म बता, किसको कहते हैं ये बताओ। ये बता, इन शैतानों का अकीदा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। बता, तेरा अकीदा है खुदा झूठ बोल सकता है? मेरा अकीदा तुम्हें क्या लगता है? मेरा अकीदा हो सकता है? तो फिर इन काफिरों के साथ क्यों है जिनका ये अकीदा हो मादल्ला कि खुदा झूठ बोल सकता है? इल्म आलिम किसको कहते हैं ये बताओ उनको भाई। अरे मुझे नहीं पता आलिम किसे कहें, तू मुझे ये बता तो क्या कि जब तेरा ये अकीदा नहीं है कि खुदा झूठ बोल सकता है तो फिर ऐसे शैतानों के साथ तू है क्यों, ऐसे गिरोह में है क्यों जिसका ये अकीदा हो मादल्ला कि खुदा झूठ बोल सकता है? तो ये कौन कहा है कि खुदा झूठ बोल सकता है? अब तुझे ये भी बताना पड़ेगा ये कौन कहा है। हाँ, तो मैं नहीं जानता हूँ तो पूछूंगा ही ना भाई। तज़किरतुल खलील उठा किताब, आशिक इलाही मेरिठी शैतान ने बोला है। कौन कौन कौन? आशिक इलाही मेरिठी। आशिक इलाही मेरिठी। हाँ, अच्छा, तो कौन सी किताब में? तज़किरतुल खलील। तज़किरतुल खलील। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बरेलवी तो तुमसे भाई बड़ा भी और देख सुन भाई, सुन बकवास करना बंद कर, बकवास करना बंद कर। तेरी तो बहुत चाल हो गई अब कि भेड़े कहाँ चुगेंगी। मैंने तुझे सीधा सीधा बताया कि काफिर है, इनका कुफ्र भी मैंने तुझे बताया और तूने इनका कुफ्र एक्सेप्ट किया। तूने कहा हाँ ये कुफ्र है, ये तौहीन है। तो नबी मैंने ये नहीं कहा, सुनो भाई, मैंने ये नहीं कहा कि ये कुफ्र है, मैंने कहा जो ऐसा कहा हो वो कुफ्र है। हाँ, जो ऐसा कहेगा वो काफिर है, तूने ये कहा ना। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो चार आलम दीन का नाम दिए हो, मैं तो उसके बारे में ये जानता नहीं हूँ कि वो कहा या नहीं कहा। अच्छा, तू जाने या ना जाने, मगर अगर उन्होंने भी ऐसा कहा है तो वो काफिर है कि नहीं है ये बता। हाँ, अगर तू कहेगा तो तू भी काफिर है भाई, मैं कहूंगा तो मैं भी काफिर हूँ। अरे यार शैतान के पुत्र यार, क्या शैतान के पुत्र? तू तो कतरा रहा है। क्या कतरा रहा हूँ भाई मैं? तू तो कतरा रहा है अपनी कही हुई बात से। कैसे कतरा रहा हूँ भाई? और भाई मैं तो कहता हूँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि जो ऐसा कहेगा वो काफिर है, वो चाहे देवबंदी हो या बरेलवी हो या अहले हदीस हो। हाँ, तो फिर किताबें उठा के देख ले जितने मैंने हवाले बताए हैं, और एक भी कोई देवबंदी दुनिया का बड़े से बड़ा देवबंदी हवाला गलत साबित कर दे तो मेरी तरफ से उसे इनाम। अच्छा ठीक है, वो तो कितना बार बोला, जब तुम्हें सुन ही चुका हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो ये सच्चाई है इस बातों में, तभी तो बोल रहा हूँ इनाम के लिए। पेड़ पे थोड़ी पैसे हिल रहे हैं। अरे ठीक है भाई, ठीक है, मैं जानता हूँ। पेड़ से थोड़ी चलना है पैसे। जी बिल्कुल नहीं, ये मेरा ईमान है, ये मेरी सच्चाई है, मेरी बात की पुख्तगी है, हाँ ये मेरे ईमान की मजबूती है।
हाँ अच्छा हाँ, और ये सच्चाई इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद तू तहकीक करे पैसों के लालच में या किसी भी वजह से, या अल्लाह ताला तेरे दिमाग में बात डाल दे कि हाँ यार तहकीक कर। तेरा नाम क्या है वैसे? एहसान। एहसान देवबंदी। हो सकता है अल्लाह ताला तेरे दिल में बात डाल दे कि हाँ यार तहकीक करनी चाहिए, जो हमारे नबी का दुश्मन है उससे दूर रहना चाहिए, हमारे नबी से जो मोहब्बत करता है उसी के साथ रहना चाहिए। हो सकता है तेरे दिल में कोई अल्लाह मतलब ऐसी कोई बात अल्लाह ताला तेरे डाल दे दिल में। समझा? मैं भी देवबंदियों में था, मुझे भी बुरा लगता था जब देवबंदियों को कोई बुरा भला कहता था। तो खाली सिर्फ देवबंदियों को बुरा भला कहता था तभी बुरा लगता था? हाँ, तो मुझे तो ऐसा बुरा लगता है, कोई मैं भी कोई बुरा भला कहे तो भी मुझे बुरा लगता है, देवबंदी को कहे तो भी मुझे बुरा लगता है। लावारिस है तू, फिर लावारिस है। कैसे भाई? तू धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, तेरी वो हालत है फिर। हाँ, तू है धोबी का कुत्ता, ना घर का है ना घाट का। मतलब जो ऐसा कहे वो धोबी का कुत्ता है? हाँ, तू वाकई धोबी का कुत्ता है। तो मैंने सुना मेरा हदीस सुनाता हूँ मैं तुझे। अच्छा हाँ, मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, 73 तबके होंगे, 73 जमातें होंगी। अच्छा हाँ, उनमें सिर्फ एक ही हक पर है, बाकी 72 के 72 जहन्नमी। अच्छा, वो एक हक पर कौन है? वो अल्हम्दुलिल्लाह हम है। अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी, जिसकी पहचान आज के दौर में सुन्नी हनफी बरेलवी कह के पुकारा जाता है, या अदर कंट्रियों में किसी और नाम से पुकारा जाता है। ठीक है? हाँ, तो वो हम हैं, यानी वफादार रसूल, जो नबी की शान में तौहीन करना तो दूर की बात, तौहीन सुनना भी पसंद नहीं करते। ठीक है? वो आशिकाने रसूल हैं, वो गुलाम मुस्तफा हैं, जो हक पर है। वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान करते हैं, और जो रसूल पाक की शान व अज़मत से चिढ़ते हैं वही शैतान है, वही जहन्नमी है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि एक हक पर है, बाकी 72 जहन्नमी। और तुम कह रहे हो कि मैं सबको मानता हूँ, अहले हदीसों को भी मानता हूँ, शिया को भी मानता हूँ, कादियानियों को भी मानता हूँ, देवबंदियों को भी मानता हूँ, बरेलवियों को भी मानता हूँ। तुम सबको मानते हो, तुम धोबी का कुत्ता हो, ना घर के रहे ना घाट के। अच्छा एक बात सुन लो। बोलो। अगर तो भाई मतलब तेरा जो माँ बाप है, तेरे माँ बाप, सुनो मैं गलत अल्फाज नहीं कहूंगा। अपने माँ बाप को कहना, सुनो मैं गलत अल्फाज नहीं कहूंगा। उल्टा कर दूंगा तुझे, उल्टा भी। तूने मुझे जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। अगर सीधा सीधा चलेगा तो मैं सीधा सीधा चलता हूँ, अगर उल्टा चलेगा सुनो भाई, मैं अपने माँ बाप की बात एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा भाई बात। नहीं, तेरे बाप का एग्जाम्पल दे। समझ में नहीं आएगा ना? नहीं, तेरे माँ बाप का एग्जाम्पल दे। सुन तो लो, मैं गलत अल्फाज नहीं कहूंगा भाई। वही बात नहीं, तेरे माँ बाप का एग्जाम्पल दे। देखो मेरा बात सुनो। जैसे मान लीजिए तेरा माँ बाप को अगर कोई गाली दे, हाँ ठीक है, अगर कोई गाली दे, मेरे बाप का अगर कोई गाली दे तो मुझे तो बुरा लगेगा, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है कि ना? हाँ। लेकिन अगर कोई मतलब तेरे माँ बाप को गाली दे, कोई बंदा, कही हुई बात मुझ पे ही लौटा रहा है शैतान। नहीं मेरे बात तो सुन लो यार। हूँ मैंने इसीलिए तुझसे पहले ही कहा था इस बात को कि अगर मैं तेरे बाप को गाली बकूं तो बर्दाश्त करेगा क्या? इसीलिए तो हमारे नबी के लिए जो हमारे नबी के लिए गाली बकता है, बदतमीजी करता है, बदकलामी करता है, तो हम बर्दाश्त नहीं करते। बर्दाश्त नहीं करते, ठीक बात है भाई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरा एग्जाम्पल का मतलब दूसरा है। तो नबी की बात क्यों नहीं ला रही है यहाँ? सुन तो लो भाई, सुनने में क्या अर्ज है? सुना बकवास कर रहा, खिचड़ी बना रहा है। हाँ ठीक है, सुन लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, जैसे कि अगर कोई मेरे माँ बाप को गाली दे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि वो मेरे माँ बाप है। लेकिन अगर कोई भाई तेरे माँ बाप को गाली दे, अगर फिर भी मुझे बुरा लगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप है। इससे मेरे को कोई बातें समझ में नहीं आई। समझ में मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल, मैं इसका समझा रहा हूँ अभी। तो वो तेरे माँ बाप मेरे माँ बाप तो नहीं हुए ना? बता और आगे क्या कहना चाह रही है? बोलो ना, इसमें तो कुछ इसमें तो तुम मानोगे तब ना बोलूंगा भाई। तेरे माँ बाप तो मेरे माँ बाप नहीं हुए ना? हाँ, चलते। अच्छा चलो ठीक है, तो मेरे माँ बाप नहीं हुए, ये बात तुम मान लीजिए हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मुझे मान लिया जाए कि बरेलवी के बारे में अगर कोई कुछ कहे, या अहले हदीस के बारे में कोई कुछ कहे, तो मुझे बुरा लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको भी मानता हूँ। तू हक पर मानता है? कैसे? अहले हदीसों को तू हक पर मानता है? जो अहले हदीस को? हाँ, मैं हक पर, हाँ मुझे तो वो भी हक पे ही लगता है। तेरे लगने से थोड़ी होगा, जब हुजूर ने फरमा दिया मेरी उम्मत में एक जमात हक पर है, एक गिरोह हक पर है, बाकी सब 72 जहन्नमी जो है वो जहन्नमी है।
तो फिर अच्छा, तेरे हाथ मेरे मानने बात- से हो जाएगा? हमारे नबी की बात बड़ी है, तेरी बात बड़ी है। अरे नबी की बात बड़ी है भाई, मैं वो ठीक है, तुम जो बात बोलो मैं मान लिया हूँ सब, अब मेरा बात सुन तो लो। अच्छा ऐसा करो, कॉल काट के आप जाओ, सुनो सुनो भाई, हेलो, कॉल काट के जाओ। कॉल काट के क्यों जाऊँ भाई, सुन तो लो। नहीं मेरा सुनना है। मेरा मेरा मसला अब तो तो क्लियर दिमाग कर खा दो। लिया, चल जा।